Hello guys, what's up? It's Raj here. Today we are discussing about the chapter 5, the fundamental unit of life. So the topic 1 is what are the living organism made of? Okay. The cells were discovered by the Robert Hooke in 1665. He studied the piece of cork under the microscope and term as a cell. इसको उन्होंने cell के term से नाम दिया. In Latin, cells means little room. Cell का Latin में मतलब होता है little room. Sheridan and Swan proposed the cell theory in 1839, which stated that the basic structure and function unit of all plants and animals is the cell. That's it. And later, Rudolf Virchow, a German psychologist, proposed German physiologist, not a psychologist, proposed a theory in 1855, omnicellula, e-cellula, which means that all living cells arise from the pre-existing cells. फिर आपका नेक्स्ट एक सेकंड गाइस. हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. And the plasma membrane is the selectively permeable membrane that allows the entry and exit of some material in the cells. फिर आपका the movement of a substance across the plasma membrane occurs through a number of mechanisms like diffusion, osmosis, active transport and endocytosis etc. फिर आपका diffusion क्या होता है? The process of movement of molecules of a substance from the area of a higher concentration to the area of lower concentration is called diffusion. Example: oxygen enters into the cell through diffusion and carbon dioxide moves out of the cell through diffusion. Diffusion helps in the uniform distribution of the material in the cytoplasm. That's it. And the osmosis is the movement of water or any other solvent from a region of a higher water concentration to the region of lower water concentration. And the cell membrane is the semi-permeable membrane that allows the movement of water molecule in both directions. Okay. Next है आपका endoosmosis. What is that? When a cell is placed in a hypotonic solution, lower solute concentration than the solution in the cell, which means it has more water concentrations as compared to the cell, and the water enters into the cell and the cell swell up. सेल हमारा स्वेल अप होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस. फिर आपका एक्सोऑस्मोसिस. तो ये क्या होता है? व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, a higher solute concentration than the solution in the cell, which means it has less water concentration as compared to the cell, and the water leaves the cell and move outside and the cells ring. The process is called exosmosis. ठीक है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. व्हेन इज स्लेब प्लेस्ड इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इक्वल सोल्यूट concentration in the outside the cell and the cell remains unaffected as the amount of water enter into the cell and is the same amount of water moves outside the cell, so there is a no net movement of water. H2 निकल रहा है घुस रहा है, निकल रहा है घुस रहा है. और ये हाइपरटोनिक है, ये आइसोटोनिक है आपका. एक बार निकला फिर घुसा और निकल गया. और ये हाइपरटोनिक में सिर्फ निकल रहा है और हाइपोटोनिक में क्या है, सिर्फ घुस रहा है. ओके, देख सकते हैं पिक्चर में. फिर आपका endocytosis. What is that? The process of ingestion of a food and other material by cell through the plasma membrane is called endocytosis, and the amoeba gets food through this process. तो amoeba क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? फूड गेन करता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सेल वॉल एंड न्यूक्लियस. तो सेल वॉल क्या है? इन प्लांट्स इन एडिशन टू द plasma membrane have another outer covering called the cell wall. And the next is the plant cell wall is composed of cellulose. दो प्लांट सेल वॉल क्या होता है? कंपोज होता है सेलुलोज का. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सपोर्ट सेल. ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सपोर्ट सेल होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इन द प्लांट सेल व्हेन द प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज प्लाज्मोलाइसिस. ये हो सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. व्हाट इज द प्लाज्मोलाइसिस? ठीक है. तो द प्रोसेस श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सोस्मोसिस इन द प्लांट सेल एंड व्हेन प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड द प्लाज्मोलाइसिस. दैट्स इट. एंड द एनिमल सेल डू नॉट हैव द प्लाज्मोलाइसिस बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल. एक चीज़ को हम लोग मेंशन रखेंगे, यहाँ पे याद रखने की कोशिश करेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, इससे आ जाए. फिर आपका न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग. एक सेकेंड गाइस.
तो गाइस हम लोग न्यूक्लियस देखें. व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज द लार्ज स्फेरिकल ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द सेल्स. दैट्स इट. एंड द सेकंड वन इज न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर हमका सेपरेटेड होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म. इसमें क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है. इसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. तीसरा पॉइंट है लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन ऑल्सो पोरस. इसमें छेद होता है एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस. दैट्स इट. इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमाटिन फाइबर्स. इसको हम लोग क्रोमाटिन फाइबर बोलते हैं. During a cell division, mitosis and meiosis, chromatin material condenses to form a rod-like structure is called chromosomes. During the cell division, mitosis and meiosis दोनों में क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्या आता है? फॉर्म करता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर. इसी को हम लोग क्रोमोसोम्स कहते हैं. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन्स, जो कि हिस्टोन्स होता है एंड एसिडिक प्रोटीन, दोनों की बात कर रहे हैं. फिर नेक्स्ट है DNA store all the information for the cell to grow, function and divide. And these segments of DNA are called genes. Genes are the heredity unit of life. Nucleate क्या होता है? फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे. Prokaryotic organism lack a nuclear membrane around their genetic material and the nuclear region is poorly defined and contain only a nucleic acid. That's it. And the such undefined nuclear material is called nucleoid. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका आ सकता है. नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे prokaryotic and eukaryotic. What is the difference between the prokaryotic and eukaryotic? That we can see that the prokaryotic cell size of a cell is generally small, 1 to 10 micrometer, and the eukaryotic cell is the size of cell is generally large, 5 to 100 micrometer. ठीक है, या म्यू इसको कह सकते हो आप प्यार से. न्यूक्लियस इज एब्सेंट प्रोकैरियोट में. न्यूक्लियड इज प्रेजेंट विच इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियड इज प्रेजेंट विच आर नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. दैट्स इट. इट कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम. इट कंटेन मोर देन वन क्रोमोसोम. ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट. ठीक है, जिसमें कि आता है माइटोकॉन्ड्रिया, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, etc. And cell division takes place by the process of fission या budding. जो cell division takes करता है मतलब process of fission या budding. And cell division takes place by mitosis and meiosis. फिर हम लोग का cell organelles देखेंगे. Endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is a series of membranous network in the cytoplasm of the eukaryotic cell, and the one end of the endoplasmic reticulum is connected to the nuclear membrane and the other end is connected to the plasma membrane. And most of the eukaryotic cells have two type of endoplasmic reticulum. फिर आता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. फिर आपका सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फैट. दैट्स इट. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिया हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिया हुआ है. राइबोसोम से न्यूक्लियर इन्वेलप है, फिर न्यूक्लियस है, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर आपका है गोल्गी अपार्चस. ठीक है, फिर गोल्गी अपार्चस इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द लाइसोसोम. देखिए गोल्गी अपार्चस का फोटो दिया हुआ है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक बार पिक्चर को मैं डिस्क्राइब करता हूँ. ऊपर राइजोम, फिर न्यूक्लियर एनवेलप देख सकते हैं. न्यूक्लियस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो नीचे में है, और देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो येलो से डोनेट कर रहा हूँ. ठीक है, फिर गोल्गी अपार्चस का देख लीजिए. यहाँ पिक्चर थोड़ा साफ टाइप का नहीं है लेकिन फिर भी मेंशन करना. ये सिस्टर्नी है, ल्यूमस है, फिर सीस फेस है, फिर आपका रिसीविंग साइड ऑफ द गोल्गी अपार्चस है, फिर आपका सेक्रेटरी वेसल्स है, न्यूली फॉर्मिंग वेसल्स है, फिर आपका ट्रांसफेस है और शिपिंग साइड ऑफ द गोल्गी अपार्चस. दैट्स इट. ठीक है, लाइसोसोम का देख लीजिए क्या होता है लाइसोसोम. इसका कॉन्सेप्ट लाइसोसोम कंटेन मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम एंड ऑल दीस एंजाइम्स आर द सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER. ठीक है, एंड दे आर बाउंड टू द लाइसोसोम थ्रू द गोल्गी अपार्चस. and these enzymes are the capable of breaking down all types of organic substances. ठीक है, लाइसोसोम हर टाइप का एंजाइम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ने का काबिलियत है इसके अंदर. ठीक है, एक्टिव है इसके अंदर, या नोट बिलो आप कह सकते हैं. द लाइसोसोम ऑल्सो कॉल्ड द सोसाइटल वैक्स ऑफ द सेल बिकॉज व्हेन द सेल गेट्स डैमेज ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर लाइसोसोम बर्स्ट एंड द एंजाइम्स ईट अप देयर ओन सेल्स. अपना सेल को खुद खा जाता है ये लाइसोसोम. ठीक है, तो देख सकते हैं आप.
नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ होता है ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज़ करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज यूज टू फॉर्म एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे राइबोसोम है, फिर एटीपी सिंथेसिस है, फिर डीएनए, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस है, फिर आपका क्रिस्टी जंक्शन, ठीक है, फिर आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन, फिर ग्रैनुअल्स, फिर मैट्रिक्स, ठीक है, फिर नोट। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द कैपेबल ऑफ सेल डुप्लीकेशन बिकॉज इट हैज़ डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एबल होता है उसका खुद का प्रोटीन बनाने के लिए। फिर होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन द मोस्ट द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स, ठीक है। तो प्लास्टिड का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है गाइस कि प्लास्टिड आर द प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन द एनिमल सेल। सो द प्लास्टिड हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सो दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेटिंग, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड क्या है? क्रोमोप्लास्टिड्स आर द कलर प्लास्टिड एक्सेप्ट फॉर द ग्रीन कलर, ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड। पहला क्या है? क्रोमोप्लास्ट आर द कलर प्लास्टिड एक्सेप्ट फॉर द ग्रीन कलर। फिर सेकंड क्या है? क्लोरोप्लास्ट आर द ग्रीन कलर ऑफ प्लास्टिड दैट कंटेन क्लोरोफिल। एंड नंबर 3 है ल्यूकोप्लास्ट इज द कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका वैक्यूलिस। वैक्यूलिस क्या होता है? Plant cell possesses a large vacuoles and the function of vacuoles are as follow. They store water and minerals पहला, and second the metabolic wastes of the cell are dumped into the vacuole. Number 3 they help to maintain the osmotic pressure in the cell, and number 4 they provide the turgidity and rigidity to the plant cell as it is filled with cell sap. Animal and plant cell, what is the difference between the? तो देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में देख सकते हैं, फोटो है उसका एनिमल सेल का। यहाँ पे पाइनोसाइटोटॉटिक वेसल्स है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपार्चस, गोल्गी वेसल्स, न्यूक्लियॉन्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोलस, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया। थोड़ा पॉइंट्स देखते हैं इसका। एनिमल सेल्स आर स्मॉल इन साइज, स्मॉलर होता है ये एनिमल सेल साइज में। एनिमल सेल्स आर इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड देन सेल वॉल इज एब्सेंट एंड द प्लास्टिड आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। नंबर फिर है इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड मैनी एंड टेम्पोररी, ठीक है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स स्मॉल होता है, बहुत सारा होता है, टेम्पोररी होता है। एनिमल सेल्स हैव सिंगल गोल्गी अपर्चस नियर द न्यूक्लियस इन बेलम एंड द एनिमल सेल्स हैव द ऑल द सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोलस। एनिमल सेल्स में क्या होता है आपका? सेंट्रोसोम्स होता है और सेंट्रियोलस होता है। नेक्स्ट है आपका प्लांट सेल का फोटो देख लीजिए क्या क्या होता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपर्चस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूली मेम्ब्रेन, रेफाइट क्रिस्टल, ड्रस क्रिस्टल, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्मा, गोल्गी वेसल्स, राइबोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या नो राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी ER से डिनोट करते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूली, एमाइलोप्लास्ट, इसको स्टार्च ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है। And the plant cells are generally larger than animal cell. In addition to the plasma membrane, plant cell is surrounded by a rigid cell of cellulose, and the plastids are present in the plant cell. That's it. And then in plant cells, vacuoles are large, fewer, and permanent. फिर next point आपका plant cells have many Golgi apertures scattered in the cytoplasm. फिर आपका plant cell lack centrosome and centriolus. That's it. And thank you very much guys. Please like, subscribe and share my channel how much you can. Thank you so much for your love and support. Jai Hind, Jai Bharat.